Hello students, beta in this video we are going to start our unit second. अब अपना unit first complete कर चुके हैं. Now we are going to start our unit second. Our unit second is current electricity. Okay. Total 3 chapters हैं इसके बीच. Hopefully third chapter जो है वो out of syllabus है. बट आप मैं थोड़ा उसका ब्रीफ पोर्शन करवाऊंगा क्योंकि डेली लाइफ वो चैप्टर यूज होता है. ठीक है, तो बी केयरफुल. ठीक है, ध्यान ना समझना है. यूनिट सेकंड अपना प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस करते रहना है. ठीक है बेटा, स्टार्टिंग करते हैं. सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी की होता है. व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? बेटा यूनिट फर्स्ट की सीगा. यूनिट फर्स्ट जो तुसी स्टडी किया है उसका नेम की सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰजेस ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਸਟੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ. that branch of physics in which we study about those electric charges which are in state of rest is known as electrostatics. ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ यूनिट फर्स्ट पढ़ चुके हो. इस ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਫੋਰਸ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਹੈ ਨਾ. ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪੈਸੀਟਰ, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸੀਗਾ यूनिट फर्स्ट ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਰੈਸਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ. ਚਾਰਜ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, मूव नहीं करता सी. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ यूनिट सेकंड. ਜਿਹੜਾ यूनिट सेकंड ਹੈ दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इस ਆਪਾਂ करंट ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ. करंट ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस मूव ਕਰਨ, those charges मूवेबल चार्जेस, ਜਿਹੜੇ चार्जेस मूव ਕਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ करंट ਬਣਦਾ है. उस करंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी बनती है. ठीक है, दैट मीन्स यूनिट सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ. ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੇਟਾ? ਇਟ ਇਜ਼ that branch of physics in which we study about those charges which are in state of motion. ठीक है, हमने जेड़ा पूरा यूनिट आएगा इस चार्जेस रेस्ट च नहीं होंगे, इस चार्जेस मूव करेंगे, मोशन च होंगे. ठीक है, सो दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. समझ आ गया की पढ़ना बेटा? इस यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस मोशन च होंगे. मैं थोड़ा एक एग्जांपल देना है. listen suppose there are two conductors A and B conductor. A का potential high है, B conductor का potential low है. जिस कंडक्टर का potential high है that means इसके चार्ज की क्वांटिटी भी लार्ज है. इसका potential low है that means इसके चार्ज की क्वांटिटी small. Potential directly proportional to charge होता है ना. ज़्यादा चार्ज है high potential, कट चार्ज है low potential. तो जो दोस्त ये ना दो कंडक्टर्स को कंबाइन करेंगे with the help of metal wire. metal दी वायर लेके अगर अपन दोनों स्फीयर्स को जोड़ेंगे तब अपन बोलते हैं charge flows from higher potential to low potential. Charge flow करेगा from high potential to low potential. And बेटा जब charge flow करेगा from high potential to low potential, then this produces current. ये charge जब flow करेगा ना एक कंडक्टर तो दूसरे कंडक्टर वाला from high potential to low potential, charge they flow दे कारण की produce करेगा. ये चार्ज कब तक फ्लो होएगा बेटा? फ्रॉम
फ्रॉम स्फीयर ए टू स्फीयर बी चार्ज कदों तक फ्लो होएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल की नहीं होएगा सेम उदों तक चार्ज फ्लो हो ही जाएगा एंड जब तक चार्ज फ्लो हो ही जाएगा उदों तक की प्रोड्यूस हो ही जाएगा करंट क्लियर। तो इस तरीके नाल करंट प्रोड्यूस होता है व्हेन करंट किवें प्रोड्यूस होता बेटा व्हेन charged particles continuously move in one direction, maybe of positive charge particles or maybe of negative charge particles, कोई भी charge particles हो maybe positive maybe negative if they are continuously moving one direction ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ when charge flows from conductor A to conductor B through metal wire the wire ਚ current produce ਹੋਏਗਾ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ flow of charge particles continuously in one direction flow of flow of charge particles continuously in one direction produces current and charge का flow एक डायरेक्शन कदों तक होता रहेगा बेटा जब तक दोनों का पोटेंशियल की नहीं हो जाएगा सेम जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा करंट जीरो हो जाएगा बट जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा इसका पोटेंशियल अलग रहेगा इसका पोटेंशियल अलग रहेगा उदों तक चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड उदों तक इस मेटल दी वायर की प्रोड्यूस होता रहेगा बेटा करंट कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वन डायरेक्शन प्रोड्यूसेस करंट ठीक है ओके कुछ टर्म्स फर्स्ट टर्म ट्रांजिएंट करंट जेड़ा करंट बहुत कट टाइम वास्ते प्रोड्यूस होवे दैट करंट which is produced for a short duration of time for a while थोड़ी देर वास्ते प्रोड्यूस होने वाले करंट को की बोले जाता है ट्रांजिएंट करंट ये किਵੇਂ होएगा ये उदों होएगा जो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत घट होएगा घट मतलब जिवें सपोज करो A का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट B का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट चार्ज फ्लो होएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ए 10 वोल्ट बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 5 ਵੋਲਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਫਰੋਮ A ਕੰਡਕਟਰ ਟੂ B ਕੰਡਕਟਰ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ डिक्रीज होएगा ਇਹਦਾ पोटेंशियल इंक्रीज होएगा एग्री when charge flows from conductor A to conductor B then ਇਹਦਾ पोटेंशियल डिक्रीज होएगा ਇਹਦਾ पोटेंशियल इंक्रीज होएगा ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ पोटेंशियल ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ सेम ਉਦੋਂ चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा ਉਦੋਂ चार्ज का फ्लो नहीं होएगा करंट जीरो हो जाएगा है ना ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ दोने कंडक्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस घट होवे स्मॉल होवे तो चार्ज बहुत छेती फ्लो होके दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर देगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर देगा वायर दे विच करंट जेड़ा प्रोड्यूस होएगा बहुत घट टाइम वास्ते प्रोड्यूस होएगा बहुत स्मॉल इंटरवल वास्ते प्रोड्यूस होएगा दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज ट्रांजिएंट जेड़ा किसी भी स्टेट ते या किसी भी वायर पे जेड़ा करंट प्रोड्यूस होवे फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम उस करंट को ट्रांजिएंट करंट कहते हैं समझ आ गया बेटा समझ आ गया जेड़ा करंट बहुत स्मॉल टाइम वास्ते प्रोड्यूस होएगा ये वो होएगा ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल होवे लाइक दिस पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल होवे है ना भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਚਾਰਜ ਫਟਾਫਟ ਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸੇਮ
जो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, करंट भी बंद हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। जेड़ा करंट वायर च प्रोड्यूस होया बहुत घट टाइम वास्ते वो जे करंट की बोलते बेटा पर ट्रांसिएंट। क्लियर? बट लिसन, सेकंड टर्म स्टेडी करंट, स्टेडी करंट। हुण सपोज करो किसी तरीके नाल कोई एक्सटर्नल चीज लगा के अगर असी इन्हां दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मेनटेन रखिए, भी इहदा पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही रहे, इहदा पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट ही रहे, कोई चीज या कोई डिवाइस लगा के लाइक बैटरी लगा दिए, बैटरी लगा दिए, बैटरी लगा दिए, ये वो सोर्स है बेटा जेड़ा इहदा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगा, इहदा पोटेंशियल 10 वोल्ट ही रखेगा, इहदा पोटेंशियल 5 वोल्ट ही रखेगा। तो जो चार्ज फ्लो देखो अब वायर जोड़ी हुई है, वायर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, वायर में जो चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो होई आएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पर जो ये बैटरी है इनका पोटेंशियल चेंज होने नहीं देगी, ये बैटरी इनका पोटेंशियल 10 वोल्ट ही रखेगी, इनका पोटेंशियल 5 वोल्ट ही रखेगी, जिस कारण चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा फ्रॉम ए टू बी, कंटिन्यूअसली चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लोस फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। जितनी देर तक बेटा चार्ज फ्लो होता रहेगा उतनी देर तक करंट प्रोड्यूस होएगा। दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज स्टेडी करंट, दैट करंट व्हिच प्रोड्यूस्ड for a long interval of time, and current long interval of time तक किवें प्रोड्यूस हो सकता है जब तक ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस कौन है जो सेम नहीं होने दे रहा? बैटरी। ਆਪਾਂ ने कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाती, कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाता जिन्हां दे कारण ਇਹਦਾ ਤੇ बी ਦਾ स्फीयर ए ਤੇ स्फीयर बी ਦਾ पोटेंशियल चेंज नहीं हो पा रहा, जब तक पोटेंशियल चेंज जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता वो तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, लगातार फ्लो होता रहेगा, कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चार्ज दे लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम तक फ्लो होना जो करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज नोन एज स्टेडी करंट। एंड दिस इज पॉसिबल अगर कोई सोर्स लगाया है, if there is some source which maintain the potential difference between the two bodies। अगर असी कोई सोर्स लगावांगे जेड़ा सोर्स दो बॉडीज दा पोटेंशियल अलग अलग रखेगा, सेम होन नहीं देगा, दिस सोर्स क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज। एंड जब तक बेटा इनका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा उस तक चार्ज फ्लो होता रहेगा कंटिन्यूअसली फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एंड जब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा उस तक की प्रोड्यूस होएगा, करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। क्लियर? तो ऐसे करंट नु जेड़ा लगातार प्रोड्यूस होता रहे फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट। क्लियर? एंड ये सारी जेडी गेम है, दिस इज अ गेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक दो बॉडीज का पोटेंशियल अलग अलग है, जब तक दो बॉडीज का पोटेंशियल अलग अलग है उस तक चार्ज फ्लो होएगा एंड करंट प्रोड्यूस होएगा। जब दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम हो गया, चार्ज का फ्लो बंद, करंट प्रोड्यूस होना बंद। हुन अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस छेती सेम हो गया, जल्दी सेम हो गया, तो चार्ज भी बहुत घट देर वास्ते फ्लो होएगा एंड करंट भी बहुत स्मॉल टाइम वास्ते प्रोड्यूस होएगा। दैट टाइप इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस काफी देर तक सेम नहीं होता, तो जितनी देर तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता उतनी देर तक चार्ज फ्लो होएगा, उतनी देर तक करंट भी प्रोड्यूस होएगा।
that type of current which is produced for a long interval of time, large interval of time, that type of current is known as steady current. समझ आ गया बेटा? मतलब ये सारी गेम करंट ट्रांजिएंट है या करंट स्टडी है, ये सारा किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे, दो बॉडीज दे पोटेंशियल डिफरेंस पे। जे पोटेंशियल डिफरेंस छेती इक्वल हो गया तो ट्रांजिएंट करंट प्रोड्यूस होएगा। जे पोटेंशियल डिफरेंस काफी देर तक सेम ना होया है ना, फिर स्टडी करंट प्रोड्यूस। समझ आ गई? इस तो हो गए अपन डिस्कस करते हैं बेटा। एक सीरीज चैप्टर में इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर की कुछ पढ़ा अपन ने अब तक बेटा की पढ़ा? व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? टेल मी व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट दोस चार्जेस विच आर इन मोशन। जेडे चार्जेस मोशन च होंगे, जेडे चार्जेस करंट प्रोड्यूस करेंगे, उन्हां दी स्टडी करना इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड ये समझ आ गया बेटा कांसेप्ट? व्हाट इज ट्रांजिएंट करंट, व्हाट इज स्टडी करंट, समझ आ गया? ओके, इस हो गए बेटा चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स tell me about charge carriers. वो पार्टिकल्स जिन्हां ते चार्ज है उन्होंने चार्ज कैरियर्स कहते हैं, ये गलत है। वो पार्टिकल्स जिन्हां ते चार्ज हो गए एंड जिन्हां दे कारण मीडियम करंट प्रोड्यूस हो, those particles which have charge may be positive, may be negative, and जिन्हां दे कारण due to which electric current is produced, जेडे चार्ज पार्टिकल्स करंट कैरी करन, समझ गए? these are known as charge carriers। जिन्हां दे कारण करंट प्रोड्यूस होवे उन्हां नूं असीं की बोलदे ने? चार्ज कैरियर्स। क्लियर बेटा? मतलब those charge particles which constitute electric current, वो चार्ज पार्टिकल्स जिन्हां दी मूवमेंट कारण करंट बनदा है, उन्हां नूं ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ, solids like conductors ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂ نو ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स हर एटम के आउटर मोस्ट शैल को की बोलते हैं? वैलेंस शैल। उस वैलेंस शैल च जो इलैक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर नोन एज फ्री इलैक्ट्रॉन्स। इनर इलैक्ट्रॉन्स नू फ्री इलैक्ट्रॉन्स नहीं कहते, क्योंकि इनर इलैक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस दे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होते हैं, वो इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने च हेल्प नहीं करते। इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने च हेल्प कौन करता है? सिर्फ आउटर मोस्ट शैल के इलैक्ट्रॉन्स, जिन्होंने तुसी की बोलते हो? valence shell। you know what is valence shell? you know what is valence shell? जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, this is nucleus carries positive charge, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ different orbits electrons revolve ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। first orbit 2 electrons, second orbit ਦੇ ਵਿੱਚ 8 electrons, then जिन्हें मर्जी अगे है ना। तो बेटा जेड़ा इनर शेल्स है आ सेकंड शेल या सॉरी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल है ना। फर्स्ट शेल सेकंड शेल दे इलेक्ट्रॉन्स नू फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहा जाता। जेड़ा आउटर मोस्ट शेल है इस शेल को की बोलते होते हैं? वैलेंस शेल। इहदे जेड़ा इलेक्ट्रॉन्स है दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने च हेल्प करते हैं। तो सॉलिड्स दे विच या कह लो कंडक्टर्स दे विच जिहड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हेल्प टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने च हेल्प करते हैं। तो सॉलिड दे
ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਸੋਲਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ सॉलिड मटेरियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ due to these free electrons ਇਹਨਾਂ free electrons ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਹ free electrons ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹ free electrons ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਬਣੇਗਾ that means solid materials ਤੋਂ conductors ਤੋਂ अगर current flow होता है it is due to the free electrons so solid materials they charge carriers free electrons liquids second liquids अगर current produce होता है it is due to ions cations and anions जिस लिक्विड से आयंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस या नेगेटिवली चार्ज आयन उन्हां चों करंट प्रोड्यूस होता है ठीक है उन्हां चों करंट इन्हां आयंस कारण ही प्रोड्यूस होता है सो लिक्विड दे चार्ज कैरियर्स आयंस होते हैं पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड नेगेटिव चार्ज आयंस सॉलिड्स दे विच करंट किस कारण प्रोड्यूस होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो सॉलिड मटेरियल्स चार्ज कैरियर्स किहड़े ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स and liquid materials से charge carriers करें ions cations and anions gases third gases वैसे generally या mostly ये gases हैं those are insulators होते हैं उन्हें जो current flow नहीं होगा but असी गैस को ionize कर सकते हैं असी गैस को आयोनाइज कर सकते हैं उन्हें आयंस कन्वर्ट कर सकते हैं कि में सुनो सपोज करो कि गैस का पार्टिकल है विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस ਅਸੀਂ ਹਾਈ एनर्जेटिक रेडिएशन गैस के पार्टिकल ਤੇ स्ट्राइक करांगे ਇਹ हाई एनर्जेटिक रेडिएशन में इस जो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर देना है पीछे पॉजिटिव चार्ज कैटायन बन जाएगा क्लियर तो जेडे आ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए ते आ पॉजिटिव चार्ज आयंस बन गए है ना इना कारण गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी तो ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ चार्ज कैरियर्स हैं चार्ज कैरियर्स ਉਹ पॉजिटिवली चार्ज आयंस ते नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज आयंस ते नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ व्हाट आर चार्ज कैरियर्स those charged particles which conduct electricity ਉਹ चार्ज पार्टिकल्स चाहे पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों those charged particles which either may be positive or may be negative but they help to conduct electricity जिन्हां दे कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होंदी है उन्हां नूं असीं बोलदे हां चार्ज कैरियर्स सॉलिड मटीरियल्स दे विच ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किहनां कारण होंदी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कारण सो सॉलिड मटीरियल्स दे चार्ज कैरियर्स की होंदे ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिक्विड्स दे विच ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होंदी है आयंस कारण कैटायंस एंड अनायंस the liquids they charge carriers केड़े होए cations and anions gases वैसे gases की होंगे ने insulators gases तो ये electricity conduct नहीं होंदी but असी किसी गैस को ionize कर सकते हैं उन्हें तोड़ सकते हैं उन्हें ions च convert कर सकते हैं with the help of high energetic radiation strike करके असी गैस particles चो electrons बाहर काट के गैस पार्टिकल को पॉजिटिव आयंस कन्वर्ट कर सकते हैं जो गैस दे विच ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो इन्हां पार्टिकल्स कारण ਅਸੀਂ गैस चो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं तो गैसेस दे चार्ज कैरियर्स की होंदे ने पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ किस पार्टिकल कारण कंडक्ट होती है किहड़े पार्टिकल्स हैं जिहड़े इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने च हेल्प करते हैं
पता होना चाहिए। सो दीज दोज पार्टिकल्स आर नोन एज चार्ज कैरियर्स। ठीक है, हुण आपां ये तो बेसिक चीज सी बेटा, जिन्ना मैं तुहानू समझाया सारी चैप्टर की बेसिक चीज सी। हुण मैं तुहानू मेन टर्म पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ये टर्म यूज करते रहोगे, ये टर्म यूज होती रहेगी बेटा, ध्यान नाल समझियो इस टर्म को। मैं तुहानू ये दो डेफिनेशंस प्रोवाइड कर, दो डेफिनेशंस, दोनों अलग-अलग है, दोनों का मीनिंग अलग-अलग है, कांसेप्ट अलग-अलग है। ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की होती है। लिसन, सपोज करो ये अपने को मेटल वायर है, मेटल की वायर है, चाहे कॉपर की लाइट कर, कॉपर की, एल्यूमीनियम की, आयरन की, किसी भी मेटल वायर है, तुसी इहनू कंडक्टर भी कह सकते हो, कंडक्टर। मैंने इस दिन सर्किट बैटरी लगाई है, स्विच लगाया, स्विच जिन्हों की कहते हैं, की। ठीक है, एंड फिलहाल ये स्विच ऑफ है, जो आप डॉट ना पाया होवे दैट मीन्स स्विच ऑफ है, जो डॉट पा लांगे दैट मीन्स स्विच ऑन है। स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो जेडे इस मेटल वायर च बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे जेडे। अच्छा, उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं दसियो मैनू, व्हाई दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, why they are known as free electrons, क्योंकि वो थोड़ी जी एनर्जी लेके अपना एटम छड़ देते हैं, अपना एटम छड़ के मटीरियल के अंदर फ्रीली एंड रैंडमली मूव करते हैं। उन्होंने वो एनर्जी कितों मिलती है, रूम टैंपरेचर तो, रूम टैंपरेचर तो वो एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी लैके अपना अपना एटम छड़ देते हैं, अपना एटम छड़ के वो फ्रीली एंड रैंडमली मटीरियल दे अंदर फ्रीली एंड रैंडमली मूव कर देते हैं। दैट्स व्हाई दोज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं, ठीक है, बट दे मूव रैंडमली, रैंडमली मूव करने का कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती। याद करो मैं तुमको की दस्या सी भी करंट कदों प्रोड्यूस होता है, व्हेन चार्ज पार्टिकल्स, आइदर चार्ज पार्टिकल्स आर पॉजिटिव और चार्ज पार्टिकल्स आर नेगेटिव, व्हेन दे आर मूव कंटिन्यूअसली इन वन डायरेक्शन, when they are moved continuously in one direction, then current is produced, उदो current produce होएगा। इन्हां दा मोशन फिलहाल स्विच की है बेटा ऑफ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैगे ने वायर च, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री ने, they are free and they are moved randomly here and there, क्योंकि उन्हां दा मोशन रैंडम है, रैंडम मोशन हो करके they does not constitute electric current, ये कोई करंट नहीं बनाती। यही कारण है जो स्विच ऑफ होवे, व्हेन स्विच इज ऑफ तुसी वायर को टच करो तो आपको कोई शॉक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वायर किसी तरह का कोई करंट नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? कि वायर च इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, होंदे ने। कि वायर दे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, होंदे ने। फ्री किवें होए? उन्होंने एनर्जी लीती, कितों एनर्जी लीती? रूम टेंपरेचर तो। रूम टेंपरेचर तो एनर्जी लेके दे आर फ्री, फ्री होकर करके दे मूव रैंडमली इनसाइड द मटेरियल, मटेरियल के अंदर अंदर मूव कर रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम किथे है भी दे आर मूविंग रैंडमली, और रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन च कंटीन्यूअसली मूव नहीं कर रहे। जब तक वो एक डायरेक्शन च कंटीन्यूअसली मूव नहीं करेंगे उद तक करंट प्रोड्यूस नहीं करूंगा। समझ गए? दैट्स व्हाई जब हम इस वायर को टच करेंगे सानू कोई शॉक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा शॉक? क्योंकि वायर में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्यों करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा? क्योंकि उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि
ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं रैंडमली मूव करेगा कोई चार्ज पार्टिकल करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा ठीक है हुण ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ लिसन केयरफुली ਕੀ ਕੀਤਾ स्विच ऑन कर जब ਅਸੀਂ स्विच ऑन ਕੀਤਾ चेक करो बेटा ਜਿਹੜਾ ए वाला एंड है this end is connected with the positive terminal बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ਨਾਲ जुड़ा हुआ है तो इधरली साइड पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप है and this end is connected with the negative terminal that's why इधरली साइड नेगेटिव चार्ज बिल्डअप है ये ਜਿਹੜਾ नेगेटिव चार्ज है ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव चार्ज है इस चार्जेस ने वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड from positive towards negative पढ़ा हुआ ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बारे इलेक्ट्रिक फील्ड produces from positive towards negative है बेटा यार ओमे वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगा ये सारे फार्मूले तुसी यूनिट फर्स्ट च पढ़े ने पढ़े फार्मूला भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल होवे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे की लगाना अंदर फोर्स समझ गए तो बेटा इधर एंड सारा पॉजिटिव हो गया इधर एंड सारा नेगेटिव हो गया वायर के अंदर की डेवलप हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे की लगानी है फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे केड़ा चार्ज होता बेटा इलेक्ट्रॉन्स पे केड़ा चार्ज होता नेगेटिव और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी दे मूव कंटीन्यूअसली इन वन डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल दे मूव कंटीन्यूअसली इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे की लगी फोर्स किसने लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाई they move continuously in one direction ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਕਰੰਟ why because ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਵੀ when charged particles continuously move in one direction in either direction ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ but all charged particles continuously move in one direction then they constitute current the current बन गया क्लियर करंट किवें बनया थोड़ा सोचो चार्ज पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली इन वन डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव इन वन डायरेक्शन का करंट बने चार्ज पार्टिकल्स एक डायरेक्शन च क्यों मूव कीते चार्ज पार्टिकल्स एक डायरेक्शन च क्यों मूव कीते क्योंकि उन्हां सारे ते की लगी फोर्स किसने लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे की लगाई फोर्स so that they move continuously in one direction and produce current that force is known as electromotive force understand name तो भी clear है ਤੁਹਾਨੂੰ electromotive force name तो clear ਹੁੰਦਾ है इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स मोटिव मतलब मोटिवेट फोर्स इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ मोटिवेट करने वाली फोर्स भी अगर तुसी रैंडमली मूव करते रहे ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं बनना ਤੁਹਾਡਾ करंट नहीं बनना क्लियर हाँ अगर तुसी एक डायरेक्शन च मूव कीते अगर तुसी एक डायरेक्शन च मूव कीते तो ਤੁਹਾਡੀ मूवमेंट के कारण की प्रोड्यूस हो सकता है करंट तो इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ मोटिवेट करने वाली फोर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो पहली डेफिनेशन EMF दी फर्स्ट डेफिनेशन ये बनी दैट फोर्स which motivates the electrons to move continuously in one direction and produce electric current समझ गए नहीं समझे एक तक क्लियर है बेटा भी जब स्विच ऑफ है
when switch is off the इस वायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ they are moving randomly क्यों क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ कोई मर्जी इलेक्ट्रॉन किधर मर्जी मूव कर रहा होगा they are free and move randomly and does not contribute current but when we switch on the circuit ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ switch on ਕਰਾਂਗੇ switch on ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਏਗਾ ਫੋर्स सारे इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करेगा भी रैंडमली मूव ना करो कुछ भी नहीं बनना ठीक है इस करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा भी तुसी सारे एक डायरेक्शन च मूव करो एंड की बनेगा करंट सो दैट force which is exerted by the electric field on the electrons to motivate them to move continuously in one direction and produce current that type of force is known as electromotive force so beta what is the definition of first definition of electromotive force key definition hogi it is that force which motivates the electrons to move continuously in one direction and constitute current that type of force is known as electromotive force clear okay ਜਿਹੜੀ device ਇਹ force ਲਗਾਏਗੀ that device is known as a source of EMF device which exert this type of force which motivates the electron to move continuously in one direction ਇਹ ਜੀ force ਜਿਹੜੀ electrons ਨੂੰ motivate करे एक direction ਚ move ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀ force जिस डिवाइस ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ डिवाइस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ EMF ਦਾ source of EMF ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ डिवाइस ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਸ बैटरी तो ਜਿਹੜੀ ਇਹ बैटरी है this battery is known as source of EMF it is known as source of EMF the role एक सेल को भी लिखा जा सकता है सेल बैटरी भी रोल प्ले कर सकती है बैटरी ठीक है जनरेटर तो भी रोल प्ले किया जा सकता है ए सोर्स ऑफ ईएमएफ है सेल बैटरी या जनरेटर with the help of cell with the help of battery with the help of generator ਅਸੀਂ EMF ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स एग्री समझ आया पहली डेफिनेशन क्लियर हुई बेटा EMF ਦੀ ਫਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇ ਟੂ ਮੂਵ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਨ one direction so that electric current produce हो सके okay that is known as electromotive force तो वो force जिस डिवाइस को लगे वो force जिस डिवाइस को लगेगी उस डिवाइस को ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ EMF ਦਾ source उस डिवाइस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ EMF ਦਾ source of EMF सोर्स ऑफ EMF का रोल कौन प्ले कर सकता है सेल भी प्ले कर सकता है बैटरी भी प्ले कर सकती है जनरेटर भी प्ले कर सकता है ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸੈਲ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੈਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲ ਹੁੰਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ। फिर इस दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोड, सेकंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन्हां इलेक्ट्रोड्स ते इलेक्ट्रोलाइट च रिएक्शन उस रिएक्शन के कारण एक इलेक्ट्रोड ते नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता बेटा, एंड एक इलेक्ट्रोड ते पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। Suppose this is A electrode, this is B electrode। ठीक है, एक कंटेनर है, सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ one electron carries positive charge and second electron carries negative charge। बेटा इसके पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? भी जेड़ा ए इलेक्ट्रोड है इसके पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मीनिंग की है बेटा? इसका मीनिंग है कि इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी कमी हो चुकी है। इस इलेक्ट्रोड ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड इसके नेगेटिव चार्ज आने का मतलब कि इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेस चाहिए, एक्सेस इसने लॉस किए वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए, जिसके कारण दिस एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कारण बेटा ਇਹਦਾ पोटेंशियल पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव चार्ज कारण ਉਹਦਾ पोटेंशियल नेगेटिव बनेगा। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस ਲਵਾਂਗੇ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ बेटा ਅਸੀਂ A इलेक्ट्रोड ਦੇ पोटेंशियल चों B इलेक्ट्रोड ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस करांगे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों ਦੇ इलेक्ट्रोड्स ਦੇ सेल ਦੇ दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस। हुन A का पोटेंशियल कितना बेटा? प्लस, B का पोटेंशियल कितना है? माइनस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एमिट्री होगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब V1 लेट कर दो, फुल हो गया। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। सुनो केयरफुली, जब तक ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, जब तक ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, उस वक्त तक ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ। चार्ज मैक्सिमम होएगा तो पोटेंशियल भी, क्योंकि पोटेंशियल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मैं फिर रिपीट कर रहे हैं, जब तक ਅਸੀਂ सेल को यूज नहीं किया, सेल को यूज नहीं किया, उस वक्त ਇਹਨਾਂ ਤੇ चार्ज मैक्सिमम होएगा। चार्ज मैक्सिमम होएगा तो अपने पोटेंशियल्स भी मैक्सिमम होंगे। अब पोटेंशियल मैक्सिमम होंगे तो अब पोटेंशियल डिफरेंस भी मैक्सिमम आएगा। This maximum potential difference is known as EMF of cell। इसको सेल की EMF बोलेंगे, E ना डिनोट करेंगे। This is known as EMF of cell, noted by E। So define, मैं तुमको आगे भी समझाना है, wait, define EMF, define EMF बेटा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੈਲ ਚੋਂ
कोई करंट ड्रा आउट नहीं कर रहे, उस चों करंट नहीं ले रहे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ नहीं ले रहे, ਸੈੱਲ ਨੂੰ यूज नहीं कर रहे, उस वक्त ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस की होएगा मैक्सिमम। दैट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ईएमएफ ऑफ सेल। इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ईएमएफ बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम क्यों होएगा? क्योंकि चार्ज मैक्सिमम, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स में चार्ज मैक्सिमम होएगा। चार्ज मैक्सिमम होएगा तो पोटेंशियल्स ज्यादा होंगे, मैक्सिमम होंगे। पोटेंशियल्स मैक्सिमम होंगे तो ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी मैक्सिमम होगा। ओके, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਲਗਾਤਾ, स्विच लगाता, एवं इस सेल को यूज करते हैं। पहले स्विच ऑफ है, बल्ब लग गया, स्विच लग गया, सेल लग गया। स्विच ऑन करना इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। वायर जो मूव होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, किधर तो किधर मूव होंगे इलेक्ट्रॉन्स? नेचुरली गल है, जिधर जाना है उधरों शिफ्ट होके किधर जाएंगे, जिधर घट है। बी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ने, ए को इलेक्ट्रॉन्स घट है, तो बी तो किधर शिफ्ट होंगे, ए वाल। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो प्रोड्यूस होएगा करंट एंड ए बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब का ग्लो करना इस गल का सबूत है कि ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ यूज कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ की एनर्जी यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे फ्रॉम बी इलेक्ट्रोड टू ए इलेक्ट्रोड। तुम सुनो, केयरफुली सुनियो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स बी इलेक्ट्रोड तो अवे जाएंगे तो इसको नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होएगा। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कारण इसका नेगेटिव चार्ज घटेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स इधर आके पॉजिटिव चार्ज नाल न्यूट्रलाइज हुई जाएंगे ना। एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। जो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 10 पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो इधरों पॉजिटिव चार्ज गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कारण दोनों इलेक्ट्रोड्स को चार्ज घटेगा। इधरों नेगेटिव चार्ज घटेगा, इधरों पॉजिटिव चार्ज घटेगा। बेटा जो चार्ज घटेगा, एज चार्ज goes on decreasing, चार्ज डिक्रीज होएगा तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होएगा। पोटेंशियल्स डिक्रीज होंगे, जो ये दोनों पोटेंशियल्स डिक्रीज होंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होएगा। मैक्सिमम नहीं रहना, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। डिक्रीज होंगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस रह गया दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। उसको ਅਸੀਂ सेल ਦਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सेल ਦੇ टर्मिनल्स ਦਾ, टर्मिनल्स ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੂੰ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨल्स ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सेल ਦੇ टर्मिनल्स ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस known as terminal potential difference of cell denoted by V। maximum potential difference denoted by E, and ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਕੇ potential difference ਰਹੇਗਾ when ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस रह गया उसको बोलोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा की दोनों में फर्क है? यस फर्क है। की फर्क है?
ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੈੱਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ EMF ਆਫ ਸੈੱਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, when we use the cell, when we draw some current from the cell, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ potential difference. Clear? So what is the second definition of EMF? What is the second? First definition ki si? What is the first definition? EMF, the first definition sigi, it is the force which motivates the electron to move continuously in one direction and produce current. ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ, that type of force is known as electromotive force. What is the second definition of EMF? EMF is the maximum potential difference between the electrodes of cell when cell is in open circuit. when ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ EMF। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ 10 ਵੋਲਟ 20 ਵੋਲਟ 30 ਵੋਲਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ EMF। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘਟੇਗਾ, ਘਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਉਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ? ठीक है? तो जी EMF है बेटा, EMF फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स देखो कंफ्यूज होंगे ने भी EMF के यूनिट्स की आएंगे, EMF के यूनिट्स, क्योंकि मैं तुहानू फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दस्या भी EMF एक फोर्स है, EMF इज अ फोर्स, ਇਹਦਾ नाम भी यही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो स्टूडेंट सोच लेते हैं कि EMF के यूनिट्स फोर्स वाले होंगे, न्यूटन, नहीं, गलत है। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग EMF इज अ फोर्स, ठीक है, बट बेटा सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग EMF इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स होंगे ने वोल्ट, EMF भी किस च मेजर होती है, वोल्ट। EMF के यूनिट्स वोल्ट होंगे, सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेंगे यूनिट्स। ठीक है, हुन बेटा ये इतना बड़ा सेल हर डायग्राम च ਅਸੀਂ इतना बड़ा सेल नहीं बनाते, ਅਸੀਂ सेल किवें बनाते, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਰੋਡ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਦ ਲੌਂਗ ਰੋਡ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਦ ਸ਼ਾਰਟ ਰੋਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਸੈਲ। ਜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈਲਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲਗਾ ਲਓਗੇ like this series, this is a battery, इसको सी बैटरी, यह सेल, यह बैटरी, यही सोर्स ऑफ EMF है, यही लगाती है EMF। ठीक है, जो ਅਸੀਂ सेल या बैटरी को यूज नहीं कर रहे उस वक्त ਜਿਹੜਾ ਇਹ पॉजिटिव ਤੇ नेगेटिव टर्मिनल्स पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, मैक्सिमम होएगा, दैट इज नोन एज। ठीक है, बट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ यूज नहीं करते, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ यूज ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ यूज ਕਰਾਂਗੇ
यूज करांगे फिर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होके जितना भी रह गया दिस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? एंड ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ इज जस्ट लाइक अ पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस द यूनिट्स वोल्ट होंगे ने, ईएमएफ द यूनिट्स भी वोल्ट होंगे, वोल्ट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ईएमएफ का डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हो तुसी, डायमेंशनल फार्मूला ईएमएफ का वेट अ मिनट। yes EMF is a potential difference and unit first potential difference is the work done upon charge, work done the formula of the force into distance, force the dimensional formula mnt minus 2, distance the L, charge the dimensional formula unit first कितना है 80, क्योंकि current is equal to charge upon time, charge is equal to current into time, current the dimensional formula 8 times the t का charge the 80, इनको सॉल्व करके EMF का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा बेटा m l and l l2 t minus 2 t की पावर 1 है, 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, t minus 3 बन जाएगा, a minus, this is the dimensional formula of EMF। ये दोनों डेफिनेशंस याद रखो जेडी मैं तुम दसिया ने, दोनों डेफिनेशंस क्लियर बेटा? समझ आया मैं की कुछ कराया? करिए रिवाइज। करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है कुछ? व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी? बोलो बेटा, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट those electric charges which are in state of motion। मतलब ये सारे यूनिट्स जेडे चार्जेस हैं मूव करेंगे, ठीक है? जो चार्जेस मूव करते हैं तो की बनता है? करंट बनता है। चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ते कब तक फ्लो होता है? जब तक पोटेंशियल की नहीं हो जाता सेम। तब जे पोटेंशियल छेती सेम हो गया तो करंट भी थोड़ी देर वास्ते फ्लो होएगा, ते ਇਹ जे करंट ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ट्रांजिट करंट। बट किसी डिवाइस की हेल्प लेके जे असी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखिए, दो स्फीयर्स च पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखिए, पोटेंशियल को सेम हो ना दईए तो चार्ज भी लगातार फ्लो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। यह जे फ्लो ऑफ चार्ज के कारण जो करंट बनता है दैट इज नोन एज स्टडी करंट। उसके बाद चार्ज कैरियर्स, दोज चार्ज पार्टिकल्स which help to conduct electricity are known as charge carriers। solid the charge carriers free electrons, liquid the charge carrier ions, gases the charge carrier ions and electrons। EMF the first definition clear beta? Clear? And then what is first definition? That force which motivates the electron to move continuously in one direction and constitute current। वो फोर्स जेडी इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करे, भी रैंडमली मूव ना करो थोड़ा कुछ नहीं बनना, एक डायरेक्शन च मूव करो फिर थोड़ा करंट बनेगा, उन्हें मोटिवेट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स। दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं होती, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। It is the maximum potential difference of cell when cell is not used in the circuit. When we does not draw any current from the cell, then the potential difference between its positive and negative terminal is maximum. That maximum potential difference is known as EMF of cell। Clear? दोनों डेफिनेशन याद रखनी है बेटा, ठीक है? बाकी नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं। Thank you very much।